Subject English. The chapter name is In the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज में क्या हो रहा था? Now I am going through the explanation. One day a guru and his disciple, guru उनके टीचर, गुरुजी and उनका स्टूडेंट visit this kingdom and are surprised to find the entire kingdom asleep during the day. The guru immediately leaves the kingdom with his disciple as he feels danger in staying in such a kingdom. जैसे उनके गुरु और स्टूडेंट ने देखा कि जिस राज में मैं आया हूं, ये राज में लोग तो दिन को सोता है, तो उन्हें कुछ फीलिंग आ गया कि लगता है कि राज ही मूर्खों का है पूरे के पूरे, और वह सोचा कि यहाँ रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है. इट इज वेरी डेंजर, सो यहाँ नहीं रहे, और यहाँ से वो गुरुजी ने चला गया. देयर वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों का वह किंगडम था. इन दिस किंगडम बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेर इडियट्स. सब के सब मूर्ख थे. They reversed everything and they denied justice to their people. They changed day into night and night into day. जो दिन का काम होना चाहिए वो रात में किया करते थे, जो रात के काम करते थे वो दिन में किया करते थे. They ordered their people to sleep during day and work only after dark. अंधेरा होने के बाद काम करे और दिन में सोया करे. Anyone who disobeyed this order would be put to death. और यदि इसकी बातों को, राजा की बातों को यदि कोई लोग नहीं मानते हैं, देन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. द पीपल डिड अकॉर्डिंगली. और लोग वहां के किया करते थे जैसा राजा बोला करते थे. वन डे टू men, a guru and his disciple visited the kingdom and found everything reverse. ये जो गुरु जी और उनके जो स्टूडेंट हैं वो देखा कि बिल्कुल कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ रिवर्स है. They were surprised to see people sleep in the broad daylight. And when darkness spread, everyone became active. जैसे ही अंधेरा होते सबके सब एक्टिव हो जाते, सब काम में लग जाते. They surprised devils when they went to the market and found that everything cost the same, a single judge. The guru and his disciples were happy because the system allows them to buy all the food they wanted for a rupee. सब कुछ अलग है और सिस्टम भी अलग है. The guru was a wise person. गुरु है तो वाइज तो होंगे ही. He told his disciple, अपने स्टूडेंट को बोला, that it would not be safe for them to stay in the kingdom of fools. मूर्खों के राज में रहना सेफ नहीं है. But the disciple was not ready to leave the place because good and cheap food was available here. यहाँ पर जो है चीप, सस्ता और अच्छा सामान मिल जाया करता, तो वो खाने के चक्कर में उनके स्टूडेंट उसे छोड़ना नहीं चाहता था. लेकिन गुरुजी जानता था कि यहाँ रहना खतरा है. So the guru left the kingdom and the disciple stayed on. Being a great foodie, he ate his fill every day and became fat in a few days. वो इतना खाता था सस्ते में, वो खा करके बहुत ही मोटा हो गया. कुछ ही दिनों में पूरे हेल्दी हो गया. One day a thief broke into a rich merchant's house by making a big hole in the wall. एक दिन एक बहुत बड़े धनी मर्चेंट के घर में एक चोर ने होल किया दीवार को, वॉल को, और उसके घर में चोरी कर लिया. But as he was going out with the stolen thing, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. The brother of the thief came running to the king and pleaded him to punish the merchant for not building a good and strong wall. The merchant was brought before the king. जैसे वो चोर उस मर्चेंट के यहाँ, व्यापारी के यहाँ, बिजनेसमैन के यहाँ चोरी करने गया, तो निकलते समय जब वो सामान लेकर निकल रहा था, तो उनके वॉल जो है जिसमें वो होल किया था उनके ऊपर गिर गया और वो वहीं स्पॉट पे उनका डेथ हो गया, मर गया. अब जो है चोर का भाई गया कंप्लेन करने के लिए किंग के पास कि आप उस मर्चेंट को सजा दीजिए, पनिश दीजिए, क्योंकि उनका जो दीवार था, जो वॉल था, वो बहुत ही वीक था, इसी कारण मेरे भाई के ऊपर गिर गया और वो मर गया. Now the king heard the case and found him guilty of the thief spot death. But the merchant put the blame on the bricklayer who had built the wall. Bricklayer pleaded the king to punish the dancing girl who distracted
his attention by the going up and down that street all day with her anklets jingling. The dancing girl, now an old woman, was brought to the court. She put the blame on Goldsmith. जैसे ही वह मर्चेंट को लाया तो मर्चेंट बोला कि मैं कहा उसमें दोषी हूं। आखिर दीवार को बनाने वाले ब्रिकलेयर, जो ईंट बिछाने वाले थे, जो दीवार बनाने वाले थे, वॉल बनाने वाले थे, उनकी गलती है क्योंकि वो अच्छे से बनाया नहीं। और वो अच्छा से क्यों नहीं बनाया? बोला कि ब्रिकलेयर का पहले पनिश किया जाए। अब ब्रिकलेयर की बात आई तो बोला कि मैं अच्छा इसलिए बनाया क्योंकि उस रास्ते से जब मैं वॉल को तैयार कर रहा था, देन डांसिंग गर्ल जो है वो उनका आना जाना हुआ करता था और उनके एंकलेट्स की जिंगलिंग आवाज जो है वो मुझे कहीं ना कहीं अटेंशन को, मेरे अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था और मैं उनके तरफ मोहित हो जाता था, उनकी आवाज की तरफ, और इसी कारण जो है वो वॉल जो है अच्छा नहीं बना था। ऐसा कहना था ब्रिकलेयर का। तो डांसिंग गर्ल अब के डेट में वो ओल्ड वुमैन बन चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और उनको कोर्ट में लाया गया। नो, वो ओल्ड वुमैन दैट मीन्स डांसिंग गर्ल वो अपना ब्लेम गोल्डस्मिथ के ऊपर दे रही है। क्यों दे रही है आइए जानते हैं। She told the king that she had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for her, but he delayed the work and made her walk up and down to his house several times. The goldsmith was produced before the king. अब ये डांसिंग गर्ल ये बता रही है कि मैं जरूर उस गली से जाया करता था, जाना और आना हुआ करता था, मैं जाती भी थी और आती भी थी क्योंकि मैंने एक गोल्ड का ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने सोनार को दिया था, मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्डस्मिथ को सोनार को दिया था और वो सोनार जो है गोल्डस्मिथ जो है लेट कर रहा था, दे नहीं रहा था और बार बार मुझे बोला था आइए आइए मिलेगा, वो टाइम पास कर रहा था, कई बार मुझे बुलाया करता था और इसी कारण से मुझे उस गली से आना जाना रहता था। उसमें मेरा कोई गलती नहीं, मैं नहीं जाना चाहती थी लेकिन वो मेरे ज्वेलरी के कारण मुझे जाना पड़ता था। He said that he had to attend to a rich merchant ordered first as there was a wedding ceremony in his family. और उनका कहना यह था कि जो वहां गोल्ड स्मिथ था वो ये बता रहे थे कि मेरे पास ऑर्डर है एक धनी आदमी का और उस धनी आदमी का घर में शादी है और उनके ऑर्डर को पहले मुझे पूरा करना है, इसीलिए इस डांसिंग गर्ल का काम पूरा नहीं हो रहा है। और वह टाइम देता था ठीक है बना देता हूं, लेकिन अब ये बात चली गई उस मर्चेंट के ऊपर। उनके घर में जब शादी था उनका ऑर्डर पूरा करने में मुझे लेट लग गया, मुझे काम था और उनको देना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए इस डांसिंग गर्ल का काम जो है पेंडिंग रह जाता था। नो, इट वॉज देयरफॉर ही मेड द डांसिंग गर्ल कम टू हिज डोर मैनी टाइम्स। द किंग आस्क्ड द नेम ऑफ द मर्चेंट। अब जो है डांसिंग गर्ल को बुलाया गया दरबार में, बोला गया उस मर्चेंट का नाम बताओ जो गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर दिया था ज्वेलरी बनाने का, क्योंकि तुम्हारा गलती नहीं है, तुम इसीलिए बार बार जाकर तुम्हारा काम पेंडिंग था और गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का बनाया करते थे। He was none other than the merchant whose wall had fallen. और वह मर्चेंट कोई दूसरा नहीं था, वह मर्चेंट वही मर्चेंट था जिनका दीवार गिरा। The merchant blamed his father who had ordered the jewelry. अब वो मर्चेंट वो अपने फादर को बारे में बताया कि वो मेरे पापा थे, फादर थे जो ज्वेलरी का ऑर्डर इस गोल्ड स्मिथ को दिया। बट फादर वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन फादर तो अब इस दुनिया में नहीं है। सो इट वॉज डिसाइडेड टू पनिश द मर्चेंट इन हिज प्लेस। तो अब किनको दिया जाए? तो ऐसा डिसाइड हुआ उनके फादर नहीं है, मर्चेंट का फादर नहीं है, तो मर्चेंट को दिया जाए, यानी उनके बेटे को दिया जाए जो अभी जिंदा है। A new stake was ordered to be ready for the execution. और इसकी सजा के लिए अब एक फाइनल हो गया कि मर्चेंट को सजा दी जाएगी, क्योंकि गलती किसकी है? मर्चेंट की है, क्योंकि मर्चेंट के पापा ने सोनार को ऑर्डर दिया, इसी कारण डांसिंग गर्ल का काम नहीं हुआ। डांसिंग गर्ल बार बार आना जाना करती थी, इसलिए ब्रिकलेयर जो है, जो दीवार खड़ा करने वाले होते हैं मैसन, उनके कारण वो दीवार अच्छा नहीं बना और दीवार अच्छा नहीं बना इसीलिए चोर को अंदर जाने के कारण होल किया और वह गिर गया। नो, बट द मर्चेंट वाज टू थिन टू फिट द स्टेक। लेकिन वो मर्चेंट जो इतना दुबला पतला था कि उसे जो पनिश करता उसे मजा ही नहीं आता। सो अ फैट मैन वाज सर्च्ड फॉर, तो बोला कि उससे अच्छा होगा कोई अच्छे तागरा,
मोटे फैट मैन को लाओ जिन्हें मैं स्टेक दैट मीन्स वहां पर पनिश किया जाए. द सर्वेंट्स आई फेल ऑन द डिसिपल हु हैड flattened himself for month and bananas and rice and wheat and ghee. अब उसका नजर वहां पर जब उनके राज दरबार के जितने सर्वेंट को जब बोला गया कि ले आओ एक मोटा तागड़े इंसान को, तो वही डिसिपल मिला जो उस गुरुजी का डिसिपल था उस किंगडम में, क्योंकि वो बनाना राइस स्वीट घी खा करके तागड़ा हो गया था. He pleaded the king that he was innocent but of no use. वो बोला कि मैं तो इनोसेंट हूं. While he was waiting for death, he remembered his guru, who saw everything in his vision. He was blessed with magic power. बोला ओके, यदि आप देना चाहते हो देन इट्स गुड, बट मुझे अपने गुरुजी का याद आज आ गया. आज उनको अपने गुरुजी का याद आ गया. क्यों याद आ गया? क्योंकि उन्हें उस समय बोला था कि ये किंगडम अच्छा नहीं है और ये यहाँ पे सब मूर्ख है. आज उन स्टूडेंट को डिसिपल को याद आ रहा है उनका गुरुजी. Now, he arrived at once to save his disciple. आज वह गुरुजी पहुंच गया अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए. सडनली जैसे उन्हें गुरुजी का याद किया, गुरुजी उनके पास पहुंच गया. अब बोलेंगे कैसे पहुंचा? आई डोंट नो, बट इट इज वेरी क्लियर. कहते हैं आप यदि याद करो तो आपके सामने ही आएंगे. बिल्कुल, आज वह डिसिपल अपने गुरु को याद किया बुरे वक्त में, बैड सिचुएशन में, तो आज उनका गुरु उनके पास आया. He whispered something in his disciples' ears. उनके कानों में कुछ बोला. Then he requested the king to put him to the stake first. When the disciple heard this, he said that he was brought there first, so he should be put to death first. अब यहाँ बात आने लगी. उनके कानों में गुरुजी ने बोला, उसके बाद अब स्टूडेंट बोल रहा है कि पहले मैं, गुरुजी बोल रहा है पहले मैं. वो बोला कि आप मुझे पनिश कीजिए, फांसी की सजा दीजिए. वो बोला कि मुझे फांसी की सजा दीजिए. द किंग वाज सरप्राइज्ड टू सी द फाइट बिटवीन द गुरु एंड हिज डिसिपल ओवर द इशू ऑफ हु शुड बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट. अब किंग को आश्चर्य हो गई कि यहाँ तो एक गुरु और उनके डिसिपल दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, फांसी के मरने के लिए तैयार हो रहे हैं. आखिर ये बात क्या है? व्हेन द किंग आस्क्ड देम, गुरुजी एंड स्टूडेंट डिसिपल से जब राजा ने पूछा कि ये रीजन क्या है, आप चाहते हो, ये भी चाहते हैं, पहले पहले. द गुरु हेजिटेटिंगली टोल्ड, वह शर्माते हुए हेजिटेटिंगली वर्ड में उनको बोला, राजा को बोला, whoever dead on the stake first, जो कोई भी सबसे पहले ऊपर जाएंगे, would be reborn as the king of that country. उनका जन्म पुनर्जन्म यानी फिर से रिबॉर्न होंगे कंट्री का राजा बन करके. ऐसा गुरुजी ने किंग को बोला. द वन हु डेड नेक्स्ट वुड बी द मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री. और जो सेकेंड मरेंगे वो उस कंट्री का मिनिस्टर बनेंगे. गुरुजी ने किंग को बोला, क्योंकि दोनों चढ़ते थे. वो बोलते थे कि पहले मैं, वो बोलते थे पहले मैं. बोला फर्स्ट वाले राजा बनेंगे, सेकेंड वाले मिनिस्टर बनेंगे, इसलिए पहले मैं जाना चाहता हूं. द किंग वॉज पजल्ड. अब किंग को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत बड़े पजल हो गए. He did not want to lose the kingdom to someone else in the next life. लेकिन ये राजा कभी ये नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में मैं न राजा होकर कोई दूसरा राजा इस राज के बने. So he discussed the matter with his minister and finally they arrived at the conclusion that they should go on the stake to be reborn as king and minister. तब वो राजा ने अपने मिनिस्टर को फाइनली ऑर्डर दिया कि इस निष्कर्ष पे जा पहुंचा कि इट विल बी बेटर कि मुझे जाना चाहिए स्टेक पर, क्योंकि जब मेरा रिवॉर्न होगा तो राजा कौन बनेगा? मैं ही बनूं और मिनिस्टर भी. सो दे वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन एंड फेड द गुरु एंड हिज डिसिपल. और इसीलिए वे क्या किए? चुपचाप खुद प्रिजन में, जेल में गए और अंदर गए और वो खुद स्टेक होल्डर बन गए एंड गुरु को और उनके डिसिपल को छोड़ दिया गया. यही थी मूर्खों का राजा और मूर्खों का
राज्य, किंगडम ऑफ फलिस। देन दे डिस्कस देमसेल्फ, तब ये लोग बात करने लगे। एज द टू एंड गॉट देमसेल्फ executed, the people now made the Guru and his disciples their king and minister respectively and began to lead a normal life. उसके बाद वहां के लोगों ने सोचा अब तो राजा बचे नहीं, अब मेरा राजा कौन बनेगा? देन इट विल बी बेटर कि इन गुरु को और उनके स्टूडेंट को मिनिस्टर बना दिया जाए और गुरु को राजा बना दिया जाए। तो वहां का राजा गुरुजी बने और डिसिपल्स जो है इनके मिनिस्टर बने और इस तरह से फिर नॉर्मल लाइफ उस राज्य में, उस किंगडम में होने लगा और टाइम बीतता चला गया। थैंक यू सो मच।